Good morning, class. Today I will discuss about the electron discharge machining. It is also known as the spark erosion machining, and it is also called EDM process. Electrical discharge machining या electron discharge machining is a basically spark erosion machining process as electrical energy is used to remove the material from workpiece by spark discharge without touching the cutting tool. In this electrical discharge machining, we remove the material only electrically conductive material. Other than electrically conductive material, we cannot be machined. In this process, anode and cathode are used, and if both electrodes are made by same materials, then more erosion produce on the positive electrodes. अगर हम लोग एनोड और कैथोड को सेम मटेरियल का बना रहे हैं, उस केस में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हमारा मेटल रिमूवल होगा, मटेरियल हमारा इरोड होगा फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स. Material is removed from the workpiece by a series of rapidly reoccurring current discharge between two electrodes, separated by a discharge liquid and subjected to an electric voltage. We make a electrode like a tool electrode or electrode. Other is electrode, workpiece electrode or workpiece. A gap maintained between the cutting tool and workpiece as a distance between the two electrodes is reduced, the current intensity becomes greater than the distance of dielectric, causing it to break. हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, वर्कपीस और टूल के बीच में एक गैप मेंटेन करते हैं, जिसको हम लोग सर्वो मैकेनिज्म से उस गैप को मेंटेन रखते हैं. ऑटोमेटिक हमारा एक्सचेंज करता है गैप कितना है, सर्वो सिस्टम, और उस मेंटेन गैप में हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमारा एक डिस्चार्ज क्रिएट करता है, स्पार्क क्रिएट करता है और मटेरियल को मेल्ट करके वाइपराइज करता है. That is the in electrical discharge machining, we remove the material with the help of melting and vaporization of workpiece metal by the electric solution by providing high current, high voltage power supply. It is a process of metal removal based on the principle of material removal by a interrupted electric spark discharge between the electrode tool and the workpiece. हम लोग इसमें मटेरियल कैसे रिमूव करेंगे, एक स्पार्क क्रिएट करना है, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करना है, डिस्चार्ज करना है किसके, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन की हेल्प से बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड कटिंग टूल्स, जिससे हमारा क्या होगा, मटेरियल मेल्ट होगा और देन हमारा क्या होगा, वाइपराइज होगा. In EDM, a potential difference is applied between the cutting tool and workpiece. The cutting tool is similar as workpiece. जिस शेप के हमारी वर्कपीस होगी, उसी शेप हम लोग यहाँ पे कटिंग टूल बनाएंगे और उसी टाइप की हमारे यहाँ पे मशीनिंग हमें मिलेगी. Essential, both tool and workpiece material are to be conducted. Workpiece, कटिंग टूल एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन हमारा कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल का ही हमारा होना चाहिए. अदरवाइज हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज क्रिएट, स्पार्क हमारा जो क्रिएट होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा. द टूल एंड वर्क मटेरियल आर इमर्ज्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. हमारे पास सिंपल एक कंटेनर होगा जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन को फिल करेंगे, जिसमें हमारा कटिंग टूल और वर्कपीस दोनों हमारे क्या होंगे, इमर्ज होंगे. जनरली केरोसिन और डीआयोनाइज्ड वाटर हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में. A gap maintained between the cutting tool and workpiece and controlled by the servo mechanism. It is the systematic figure for EDM process. We use a rectifier for the power supply and it is a current control, and here we use a cutting tool and workpiece. Both are immersed in a dielectric fluid. It is the tank, and we provide a motion of cutting tool with respect to workpiece and maintain a minimum gap with the help of servo control. Servo control, we maintain a minimum gap between the cutting tool and workpiece, and when apply a high current voltage, high current process, then we create a spark between the workpiece and cutting tool. Then
workpiece is melted and evaporated. It is the another systematic diagram for the power supply. Cutting tool head, कटिंग टूल, डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन हमारा होगा यहाँ पे फिल होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से नोजल थ्रू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पंप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं हाई वेलोसिटी थर्मल इम्प्रेसमेंट डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन से हमारा क्या होगा जो मटेरियल को जो मटेरियल हमारा इरोड होगा उस पोर्शन पे उसको क्या करेगा फ्लश अवे करेगा। डायरेक्टली सॉल्यूशन के हमारे दो बेसिक फंक्शन होता है, हमारा क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज को इंक्रीज करता है और जो हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है अनवांटेड मटेरियल एट द मशीनिंग जो उसको क्या करेगा फ्लश अवे करेगा। ठीक है, और जो टूल मोशन हमारा होगा उस टूल मोशन हमारा कैसे कंट्रोल होगा बाय विद हेल्प ऑफ सर्वो सिस्टम, तो हमारा मिनिमम गैप मेंटेन रखेंगे ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। पूरे तरीके से हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हमारा होता है जिसको हम लोग विद हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे मेंटेन रखते हैं और वर्किंग प्रोसेस करते हैं। Depending upon the applied potential difference between 50 to 450 volt and the gap between the tool and workpiece, and an electric field would be established. हमारा क्या होगा यहाँ पे हम लोग 50 से 450 वोल्ट हम लोग यहाँ पे हाई करंट हाई वोल्टेज हम लोग पावर सप्लाई करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा इस गैप में हमारा टूल और वर्कपीस में हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा। Generally, the tool is connected to negative terminal, that is the cathode of the generator, and the work is connected to the positive terminal, that is the anode. हम लोग क्या करते हैं जनरल कटिंग टूल को हम लोग कैथोड बनाते हैं और वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं, दैट इज द एनोड। दैट मींस हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ और हमारे जो पॉजिटिव आयंस होंगे मूव करेंगे। दैट मींस हमारा क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन हमारा क्या करेगा इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज को इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा क्या होगा एक स्पार्क क्रिएट होगा और हमारा यहाँ पे जो मटेरियल होगा वर्कपीस का वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद देन इवेपोरेट। As the electric field is established between the tool and job, the free electrons on the tool are subjected to electrostatic force that is the required for the material removal in the EDM process. If the bonding energy of electrons is less, the electrons would be emitted from the tools. अगर हमारे पास जो बॉन्डिंग एनर्जी कटिंग टूल पे मिल रही है वो अगर हमारे क्या यहाँ पे लेस है तो हमारे इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से मूव होंगे कैथोड से एनोड की तरफ। As they gain velocity and energy and start moving towards the job, there would be collision between the electron and the dielectric molecules. Such collision may be result in ionization of the dielectric molecules. All of a sudden, a large number of electrons will flow from tool to the job and ions from the job to tool. So, हमारे क्या होगा इससे हमारे large number of electrons tool की तरफ से मूव करेंगे कहाँ की जॉब की तरफ से, और जो हमारे आयंस होंगे वो हमारे कैसे मूव करेंगे वर्कपीस से हमारे कहाँ की तरफ टूल की तरफ मूव करेंगे। Such movement of electrons ion are visually seen in spark. विद हेल्प हम लोग स्पार्क से हम लोग क्या कर सकते हैं इसी तरीके से विजुअल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो मोशन हमारा हो रहा है मूवमेंट जो हो रहा है इसी तरीके से हम लोग स्पार्क से मूव कर सकते हैं। Thus इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड एज द थर्मल एनर्जी ऑफ स्पार्क। इससे हमारे का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो थर्मल में पूरे तरीके से हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, इससे हमारा मटेरियल मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद देन वेपराइज होगा, जिससे हमारा क्या होगा जो मशीनिंग क्रिएट होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हमारी क्रिएट हो जाएगी। The kinetic energy of electrons and ion impact with the surface of job and tool respectively would be converted into thermal energy or heat। इससे हमारे को जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आयंस आ रहे हैं उनकी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे क्या होगी सरफेस ऑफ जॉब्स और टूल से रिस्पेक्टिवली हमारे क्या करेगा इम्पैक्ट करेगा, जिससे हमारे क्या होगा जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल एनर्जी में, और थर्मल एनर्जी या हीट में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। Such intense localized heat flux lead to steam instantaneous confined rise in temperature, which would be excess about 10,000 degrees centigrade. About 10,000 degrees centigrade will be temperature at developed at the workpiece zone, where the material melting and evaporating. Such localized steam rise in temperature lead to material removal. That is sufficient temperature for melting of the workpiece and easily vaporize, and we create a machining area or machining in the workpiece materials. Material removal occurs due to instant vaporization of material as well as due to melting. The molten metal is not removed completely but only partially. Molten metal हमारा पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो पाता है बट हमारा पार्शली हमारा रिमूव होता है जब पूरा मटेरियल वहां से इवेपोरेट हो जाए।
प्रिंसिपल हमारा क्या है, when a potential difference is applied between two conductors immersed in a dielectric fluid, that fluid will be ionized and a spark will be occur. जो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन टू कंडक्टर्स, दैट इज द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, और उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक फ्लूइड में इंसर्ट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, एक ऑयनाइड स्पार्क हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। इफ द परसेंटेज मेंटेन द स्पार्क विल डेवलप इनटू एएनआई, और हमारे जिससे क्या होगा, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए तो हमारा क्या होगा, जो स्पार्क होगा वो आर्क के फॉर्म में हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा। Characteristics of iridium: a suitable gap between the tool and workpiece called spark gap must be maintained 0.01 to 0.5। बहुत ही मिनिमम गैप हम लोग वर्कपीस और टूल के बीच में रखते हैं, जिसे हम लोग स्पार्क गैप बोलते हैं। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सर्वो सिस्टम हम लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। मोर इरोजन और एनोड, दैट मींस हमारा क्या है, मटेरियल हमारा ज्यादा कहाँ से इरोड होगा, जो हमने पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया, दैट मींस द वर्कपीस से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, पैराफिन या केरोसिन या ट्रांसफर ऑयल यूज कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज अबाउट 40 से 350 हम लोग यहाँ पे बोल्ट। हाई वोल्टेज लो करंट प्रोसेस हमारा है अबाउट 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे यहाँ पे 10,000 या 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के हमारे यहाँ पे लोकल टेम्परेचर क्रिएट होगा, दैट इज सफिशिएंट टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग ऑफ द वर्कपीस। वर्कपीस हमारा कैसे होगा, जस्ट लाइक ए रिप्लिका ऑफ द कटिंग टूल, हमारा कैसे होगा, जस्ट ए रिप्लिका ऑफ द वर्कपीस। एज ए टू रिप्लिका ऑफ द टूल सरफेस विल बी प्रोड्यूस ऑन द वर्कपीस। जिस शेप की हमें मशीनिंग करनी होगी, कटिंग टूल को हम लोग उसी शेप के एग्जैक्ट बनाते हैं जिसे हमें मशीनिंग करनी होगी। डायरेक्ट फ्लूइड हमारा क्या होगा, सर्कुलेट करेगा एक पर्टिकुलर थ्रू द नोजल, यहाँ पे पूरे हमारा जहाँ पे मशीनिंग एरिया है, फॉर द मेंटेनिंग ए सर्टेन टेम्परेचर ऑन द मशीनिंग जोन। एडवांटेज हमारे क्या, ईटीएम प्रोसेस के किसी भी तरीके का हमारा कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग ये तरीके से बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड से हमारा पॉसिबल नहीं। बट क्या वो हमारा वर्कपीस मटेरियल कैसे, हम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल पे हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं। एक्सट्रीमली अगर कोई हार्ड मटेरियल्स है और उसमें बहुत ही क्लोज टॉलरेंस की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग विद हेल्प ऑफ ईटीएम प्रोसेस वी कैन बी इजिली डन। वेरी स्मॉल वर्क पीस, अगर हमारी कोई बहुत ही स्मॉल वर्क पीस है जहाँ पे हमारा कोई कन्वेंशनल टूल हमारा वर्क नहीं कर सकता है, या हमारा अगर वर्क करेगा तो हमारी वर्क पीस से कटिंग टूल दोनों डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा, उस केस हम लोग ईटीएम प्रोसेस का यूज कर सकते हैं फॉर द वेरी स्मॉल वर्क पीस। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कटिंग टूल एंड वर्क पीस, सो minimum tool wear in EDM process, therefore dedicated section and weak section can be mentioned without any distortion। जब हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वर्क पीस और टूल के बीच में नहीं होगा, तो कोई भी हमारा वीक सेक्शन हो या स्मॉल सेक्शन हो, वहाँ पे हम लोग इजी तरीके से हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस एंड टूल। बहुत हमारे यहाँ पे गुड सरफेस फिनिशिंग ऑब्टेन्ड होती है कंप्लीटेड टू अदर मशीनिंग प्रोसेस। डिसएडवांटेज हमारे क्या है, मेटल रोलेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही स्लो। हमने क्या बताया था कि जितने भी हमारे अनकन्वेंशनल मशीनिंग होती है, यहाँ पे मेटल रोलेट हमारा बहुत ही मिनिमम मिलता है इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ मटेरियल जो हमारा रिमूव हो चिप्स और बहुत ही माइक्रोन साइज के फॉर्म में रिमूव होता है। बट हमारा कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, वहाँ जो हमारे चिप्स रिमूव होंगे वो हमारा चिप्स जो मटेरियल हमारा रिमूव होगा वो हमारा किसके फॉर्म होगा, चिप्स। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बहुत ही माइक्रोन साइज पाउडर के फॉर्म मटेरियल हमारा रिमूव होता है। तो हमारे क्या होगा, यहाँ पे एमआरआर जो हमारा होगा बहुत ही स्लो होगा। फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन द सरफेस फिनिशिंग स्पेसिफाइड शुड नॉट बी टू फाइन। अगर इकोनॉमिक प्रोडक्शन फॉर्म से देखेंगे तो हमारी बहुत ही कॉस्टली हमारा प्रोसेस होता है इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल मेथड। द एडिशन टाइम एंड कॉस्ट यूज फॉर द क्रिएटिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर रैम ऑन स्टिकर एरियम, हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें अप्लाई करनी होती है इलेक्ट्रोड्स को क्रिएट करने के लिए, जो हमारा टूल यूज कर रहा है उसको बनाने के लिए। हमें दोबारा क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पे अगर जब मशीनिंग करेंगे तो हमारी कुछ अनवांटेड बर्फ हमारी ये बच जाती है मशीनिंग जोन पे, जिससे हमें क्या करना होता है, दोबारा से हमें उस शार्प कॉर्नर को प्रोड्यूस करना होता है जहाँ पे हमारी जो कॉस्टली हमारा हो। ठीक, रिप्रोड्यूसिंग अ शार्प कॉर्नर ऑन द वर्कपीस इज डिफिकल्ट टू डू इलेक्ट्रोड वियर। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन हमारा क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ओवर कट इन द फॉर्म, कभी कभी हो सकता है कि हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होने की वजह से हमारा क्या होता है, कुछ ओवर कट भी हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। एक्सेसिव टूल वियर अकर ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, टूल वियर हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू अदर मशीनिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन वी क्रिएट हाई टेम्परेचर, देन वी क्रिएटिंग इट एक्सेसिव टूल वियर ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। और यहाँ पे हम लोग क्या इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल हम लोग कभी मशीनिंग नहीं कर सकते हैं। बोथ कटिंग टूल एंड वर्क पीस एज वेल एज डायरेक्टली सॉल्यूशन हमारा कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल को सपोर्ट करने वाला
होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल भी होना चाहिए फॉर द ईडीएम प्रोसेस। और फंक्शन हमारे क्या होंगे डायरेक्टली फ्लूइड के, पहले क्या कर देता है, एक कंडक्टिव मीडियम क्रिएट करता है, किसके लिए, स्पार्क के लिए। सेकंड हमारा क्या है, वर्क पीस और कटिंग टूल दोनों को क्या करेंगे, कूल करेगा। थर्ड, कैरीज अवे द इलेक्ट्रो मटेरियल, जो हमारा मशीनिंग एरिया पे हमारा जो रोड मटेरियल हुआ है उसको क्या करेगा, फ्लश अवे करेगा फ्रॉम द पंप। प्रॉपर्टी जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमारे क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हमारे ये टॉक्सिक ना हो, वेपर ना हो, गैसेस हमारे वेपर और टॉक्सिक हो के हमारा कोई वेपर और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, इनफ्लेमेबल होना चाहिए, और केमिकल इनर्ट हमारा टूल और वर्क पीस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ पे केमिकल हमारी कोई रिएक्शन होने लगे टूल और वर्क पीस के बीच में। टूल मटेरियल ब्रास कॉपर या एलॉय ऑफ कॉपर कास्ट आयरन हम लोग यहाँ पे इजी तरीके से टूल मटेरियल को यूज कर सकते हैं। Application dealing of micro holes, thread milling, helical profile milling, rotatory forming, and curved hole drilling can be easily with the help of EDM process. Dedicated workpiece like copper parts can be produced by EDM process. Some dedicated section or big section are also be performed with the help of EDM process. Can be applied to all electrically conductive metals and alloy irrespective their melting, hardness, toughness, and brittleness. Other application is small, deep holes using tungsten wires, tools, narrow slots, cooling holes in superalloy materials, turbine blades, and various intricate shapes can be easily done by with the help of EDM process. EDM process can be very useful for the extremely hardened workpiece materials since there is no mechanical stress present. So we use in fragile or weak section materials without any distortions. Hard and corrosion resistant surface in cell cylinder for the die making can be developed. हम लोग EDM प्रोसेस से डाई मेकिंग और कुछ हम लोग यहाँ पे कटिंग टूल्स भी इस तरीके से बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल एज वेल एज फ्रेगाइल और वीक सेक्शन हम लोग इस तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDM प्रोसेस। थैंक यू क्लास।